Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video we will discuss equation of continuity in rectangular coordinate systems and then equation of continuity in generalized orthogonal curvilinear coordinate system, and from there we will deduce the equation of continuity in rectangular Cartesian coordinates, cylindrical and spherical polar coordinates. So first we will see equation of continuity in Cartesian coordinates. So we know that xyz axis we have to take. So we draw a parallelepiped small volume, we take x, z, y, these are the axes. In rectangular coordinate we take a small volume, a small parallelepiped, and mark its faces. So this is P, Q, R, S, and this is P dash, Q dash, R dash, S dash, R dash, and entering from here, leaving from here. This is one face. Another face is that it is entering from this front side and leaving from back side, and one is entering from below and coming out from here. So from three faces it is entering and three it is leaving, and we take one point P here. P is having the coordinates xyz, and say rho is the density which is function of xyz and t at P. This is the density at P at any time t. किसी समय पर ये डेंसिटी है पॉइंट P पर फ्लूइड की. U V W जो हैं कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जो है लेंथ ऑफ दिस पैरेललोपाइड. एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स, वाई में डेल्टा वाई एंड जेड में डेल्टा जेड. सो स्मॉल पैरेललोपाइड हमने ले लिया. अब हमें देखना है मास कंजर्वेशन है. सो एंटरिंग मास एंड लीविंग मास में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड passes through the face PQRS. सो ये कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द फेस. एरिया ऑफ द फेस डेल वाई अपॉन डेल जेड इंटू द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है पर यूनिट टाइम. सो दिस मच इज़ द मास विच इज़ एंटरिंग. इसे हम एफ एक्स वाई जेड से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का. इक्वेशन 1. अब हम देखते हैं कि मास ऑफ द फ्लूइड जो कि इसके अपोजिट फेस से पास हो रहा है, पासेस थ्रू P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश. सो क्या होगा, इसमें चेंज कितना आ जाएगा. F जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स, ये चेंज आ गया. वाई जेड में कोई चेंज नहीं होगा पर यूनिट टाइम. सो हम इसे टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे. सो दिस विल बी एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, f of x y z and so on plus so on. So this is by using Taylor's theorem. So net flow क्या होगा, या net gain in mass, mass of fluid जो एंटर हुआ और जो बाहर लीव हुआ, दिस इज एंटरिंग माइनस लीविंग.
So entering is fxyz, this much fluid has entered, and left is plus del x, so this will be minus del upon del x fxyz, and so on. So higher order terms we can neglect, and this will cancel out, the whole thing is leaving. So remaining, if we neglect the higher terms, higher order terms, we will have minus del x, del upon del x fxyz, एंड fxyz कितना है, हमने इसे एज्यूम किया था del x del upon del x, दिस इज रो del y del z into u. सो del y del z इंडिपेंडेंट है del x से, तो हम इन्हें बाहर ले सकते हैं, del x del y del z del upon del x रो u. सो ये हमारा x एक्सेस के अलोंग जो फेस है उससे वैल्यू आई. अब हम y एक्सेस सिमिलरली हम लिख सकते हैं, y एक्सेस से अलोंग क्या होगा, del x del y del z del upon del y रो v, एंड z के अलोंग जो होगा del x del y del z del upon del z रो w. सो ये तीन हमारी वैल्यूज़ आ गई जो कि तीनों फेसेस से एंटर करा और तीन फेस से लीव कर गया. सो टोटल रेट और total rate of mass of flow into the elementary parallelopiped so total rate of mass flow into the elementary parallelopiped is piped is, we will add them and then we will get the total mass, and that is the, because we are taking per unit time, so this becomes rate. We are discussing it per unit time, always per unit time is we are talking about rate. तो total rate of mass flow into the elementary parallelopiped is this much. ये तीनों टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, और रेट इसलिए क्योंकि पीछे जब हमने बात की है तब कहा है मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द फेस पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम का मतलब रेट है, तो हम पर यूनिट टाइम ना लिख के वहाँ ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू द फेस. सो यहाँ से टोटल हमारे पास रेट आ गया, रेट ऑफ मास. और हमें पता है फ्लूइड मास क्या होगा अगर हम एलिमेंट में लें, जो कि हमने स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप लिया एट टाइम t, density into volume. So this is density and volume is this much. अब हमें total rate निकालना है of mass increase within the element होगा del upon del t. So rho del x del y del z. So del x del y del z t पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, so del rho upon del t. अब a and b जो हैं ये इक्वल हैं, हमने इन्हें इक्वल रख दिया. So this we can write down del rho upon del t plus del upon del x rho u plus del upon del y rho v plus del upon del z rho w is equal to 0. अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, वैसे ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बट वी कैन राइट डाउन del rho upon del t plus rho del u upon del x plus u del rho upon del x, product of two functions del rho upon del y plus del v upon del y plus del rho upon del z plus del w upon del z is equal to 0. सो हम क्लब कर लेते हैं रो वाले टर्म्स, del upon del t plus u del upon del x plus v del upon del y u, then we had v
So we take this one, plus and rest of the terms, rho del u upon del x plus rho del v upon del y plus rho so this can be written, हमने अभी पढ़ा था, d रो अपॉन डी टी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्लस रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये सभी पॉइंट पर होल्ड करती है फ्लूइड में, जबकि फ्लूइड में कोई सोर्स और सिंक्स नहीं है। सोर्स एंड सिंक्स आर नॉट एग्जिस्टिंग फ्री फ्रॉम एनी सोर्स एंड सिंक, कोई सोर्स एंड सिंक नहीं है। उस केस में ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और जैसे कि हमें पता है कि अगर रो कांस्टेंट हो, जो कि इस केस में हो जाएगा जब फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल, रो कांस्टेंट हो जाएगा तो डी रो अपॉन डी टी की टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है ये ऑर्थोगोनल है, मीन्स 90 डिग्री पर हमारा ये पर्टिकुलर केस होगा, अदरवाइज ये कर्वीलिनियर है। सो एक्स वाई जेड एक्सेस हम लेते हैं, ये एक्स वाई जेड, और जैसा कि ये कर्वीलिनियर है तो कर्व हमें कैसे ऑब्टेन होता है, अगर इंटरसेक्टिंग सरफेसेस हों तो उससे हमें कर्व ऑब्टेन होता है। सो हम सरफेसेस ले लेते हैं और दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट and of course on in a line also. So these are the surfaces which are intersecting. So let's say ये u1 is equal to c1 surface है, यहाँ पर u2 is equal to c2 and u3 is equal to c3, ये surfaces हैं और एक ही पॉइंट p पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो p जो है पॉइंट xyz में डिनोट किया जा सकता है, एंड इस पॉइंट पर ये तीनों कट कर रहे हैं। सो हमारे पास u1 और u2 के इंटरसेक्शन से एक कर्व मिला जिसे हम कहेंगे u3 कर्व या u3 लाइन, ये कोऑर्डिनेट कर्व कहलाएगा, कोऑर्डिनेट लाइन कहलाएगी। एंड u1 u3 के इंटरसेक्शन से मिला हमें u2 कर्व, एंड u2 u3 से u1 कर्व। और अगर हम इन पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट मिलेगी ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये q2, एंड पैरेलल इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस पॉइंट इज हैविंग टेंजेंट, let's take which is coming tangent like this, q1 curve is like this, the tangent is here because we are taking it in x direction, and this is tangent at u1 curve, right? Now tangent on this will give us
z axis q3. So q1, q2, q3 is new set of coordinate axis, and these are the tangents pq1, pq2, pq3. Okay, so we got the curves or coordinate curves or lines which we obtained, जो हमें मिली surfaces के intersecting point से, and कर्व्स मिले, उन पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की, वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया जो कि q1, q2, q3 से हमें डिफाइन कर सकते हैं. सो ये तो बात हुई कि ये कहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी जबकि कर्व्स और सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब पी एक्स वाई जेड जो पॉइंट है इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट single valued and continuously differentiable scalar point functions u1, u2, u3 से. क्या कहा हमने? 3 इंडिपेंडेंट हैं, u1, u2, u3 इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल वैल्यूड हैं, इनकी एक एक वैल्यू कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, स्केलर पॉइंट फंक्शन ये इस पॉइंट पर p पर भी डिफाइन हो रहे हैं. सो दिस इज़ u1, u2, u3. तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम x y z को? x इज़ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, y इज़ ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, and z is a function of u1, u2, u3. So ये इक्वेशन 1 है, दिस टोटल इक्वेशन. और अगर हम जैकोबियन फाइंड आउट करें, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू u1, u2, u3, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट वैनिश, इट डज नॉट वैनिश, ये वैनिश नहीं करता, ज़ीरो नहीं आता है, तब ये जो इक्वेशन 1 है ये इन्वर्टेबल है. टेबल का मीनिंग ये हुआ कि हम u1, u2, u3 को x, y, z के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x, y, z लिख सकते हैं. तो u1 इज इक्वल टू u1 x, y, z, ये मीनिंग है इन्वर्टेबल का. u2 इज u2 x, y, z, and u3 is u3 x, y, z. सो ये इक्वेशन 2 हो गई. सो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, u1, u2, u3, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हैं. एंड ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, इसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दे मे बी इक्वेशन 1 एंड 2 डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को. तो जैसे कहा कि u1 इज इक्वल टू c1 एक कर्व था, u2 इज इक्वल टू c2 एक कर्व था, u3 c3 इनके इंटरसेक्शन से हमें मिला u3 कर्व, इनके इंटरसेक्शन से मिला u1 कर्व, एंड फर्स्ट एंड थर्ड से मिला u2 कर्व. सो कर्व्स हमें ऑब्टेन हो गए, और ये सरफेसेस जो हैं कोऑर्डिनेट सरफेसेस कहलाती हैं, और हर एक पेयर से हमें एक कर्व मिला या एक लाइन मिली. सो जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ड्राइव वो टेंजेंट से हुआ, pq1, pq2, pq3 से हमें नया सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑब्टेन हो गया. और ये जो डायरेक्शन है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का,
ये डिपेंड करेगा जो हमने पॉइंट P चूज़ किया है इन स्पेस में उसके अकॉर्डिंगली होगा, और इसकी वजह से जो यूनिट वेक्टर्स एसोसिएट होंगे इन पर वो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑर्थोगोनल वाला ही केस कंसीडर करना है। इसलिए सिर्फ हम वो वाले केसेस में इंटरेस्टेड हैं जहाँ की Q1 Q2 Q3 जो है ये 90 डिग्री पर हैं टू ईच अदर। If at every point P the coordinate axes are mutually perpendicular, अगर ये हैं तब U1 U2 U3 कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कहलाएंगे। अगर हम लाइन सेगमेंट लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन सेगमेंट, तो हम उसे डिफाइन करते हैं ds से। ये स्मॉल कोई लाइन सेगमेंट है, तो अगर हमें ds होल स्क्वायर लिखना होता है तो ये फार्मूला है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। और अगर जो इक्वेशन 1 है जहाँ हमने लिखा है x इज इक्वल टू x ऑफ u1 u2 u3, ये पूरी इक्वेशन है, y के टर्म में भी है एंड z में भी है, z में टर्म में, उसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने पर हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u3 du3। dy लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u3 du3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। dz भी लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u3 du3। सो ये हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट कर। अब ये वैल्यू dx dy dz की अगर हम ये इक्वेशन a में सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा dz स्क्वायर इज इक्वल टू d डेल एक्स अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल u3 du3। इसी तरह हम बाकी की टर्म लिख सकते हैं जो कि dy स्क्वायर होगा और dz स्क्वायर, इसकी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ वैल्यू। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके स्क्वायर करके जब हम ओपन करेंगे और इस फैक्ट को कंसीडर करें कि जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, तो जो कोफिशिएंट्स ऑफ du1 du2 du2 du3 du3 du1 ये वैनिश हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो जो बचेगा वो हम लिख सकते हैं, अगर हम मान लें h1 इज इक्वल टू है डेल एक्स अपॉन डेल u1 होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल u1 होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल u1 होल स्क्वायर। और इसी तरह h2 को एज्यूम कर लें u2 के रिस्पेक्ट में और h3 u3 के रिस्पेक्ट में। सो डेल एक्स अपॉन डेल u2 होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल u2 होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल u2 होल स्क्वायर एंड h3 है डेल एक्स अपॉन डेल u3 होल स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल u3 होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल u3 होल स्क्वायर। ये हम h1 h2, तो हम ये एक्सपेंशन करें ds स्क्वायर तो ये लिखा जा सकता है h1 स्क्वायर du1 होल स्क्वायर, h1 की ये वैल्यू है, और जो प्रोडक्ट वाले हैं वो तो वैनिश हो जाएंगे, प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 होल स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ आ गई।
सो दिस h1 h2 h3 जो हैं ये स्केल फैक्टर्स कहलाते हैं, स्केल फैक्टर्स। सो ये हो गई बात कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की। अब हम इसी से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करते हैं।